السلام علیکم۔ ناہید طاہر ریاض سعودی عرب سے اپنے خوبصورت افسانوں کے ساتھ حاضر ہے۔ افسانہ سنانے سے پہلے آپ کو ایک اچھی خبر سنا دوں کہ الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں اب خواتین کی ڈرائیونگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اس کی پرمیشن مل چکی ہے، ابھی اسی کی پریکٹس چل رہی ہے، دعا کریں۔ گلہ موت سے نہیں۔ شام سے بادل چھائے ہوئے تھے، رات ہوتے ہوتے یہ بادل ٹوٹ کر برسنے لگے۔ بجلیوں کی چمک اور بادلوں کی کڑک سے فاطمہ پریشان قرآن مجید کو بند کرتی ہوئی کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ باہر جھانکنے لگی۔ طوفانی بارش تھی، ساتھ ہی ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں، جس نے ماحول کو کافی ہولناک بنا دیا تھا۔ صحن میں بچھی چارپائیاں بکھر کر رہ گئی تھیں۔ صحن کے بالکل کنارے مرغیوں کے لیے بنایا گیا لکڑی کا ڈربہ تیز ہواؤں کی زد میں بری طرح ہل رہا تھا، جس کے باعث مرغیاں بھی خوف زدہ پھڑ پھڑاتی شور مچا رہی تھیں۔ پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا تھا۔ خواتین کی عجیب و غریب آوازیں بیان کی شکل میں گونج رہی تھیں، جس سے ماحول اور زیادہ ہولناک محسوس ہونے لگا۔ فاطمہ جس ملک سے لوٹی تھی، وہاں کبھی میت گھر نہیں رکھی جاتی تھی۔ جیسے ہی انتقال ہو جاتا، پولیس کا عملہ میت کو لے کر مردہ گھر پہنچ جاتا۔ جب پیپر کارروائی مکمل ہوتی، تب تجہیز و تکفین کی کارروائی عمل میں لائی جاتی۔ اگر گھر والے چاہتے کہ میت اپنے ملک بھیجی جائے تو پھر اس کا انتظام بھی کر دیا جاتا۔ خنک ہواؤں کے جھونکوں تلے وہ طوفان کو تکے جا رہی تھی۔ اس طوفانی بارش میں اسے عورت کے کئی چہرے دکھائی دینے لگے، کہیں وہ مظلوم، کہیں وہ محبت و حسن کی دیوی، کہیں وہ ڈائن تو کہیں ممتا کی نرم چھاؤں، کہیں بغاوت پر آمادہ اور کہیں اپنی قسمت کے لکھے پر سر تسلیم کرتی ہوئی لاچاری کا مجسمہ۔ ہر بوند میں ایک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دو خوبصورت دل ہونی چاہیے، ایک اعتماد بھرا تو دوسرا احساس سے پر۔ افسوس اس بات کا تھا کہ نہ علی کے پاس احساسات تھے اور نہ ہی جذبہ اعتماد۔ فاطمہ نے ایک سسکاری بھری، تب ہی بجلی گل ہوئی، ہر سمت اندھیرا چھا گیا، بالکل اس کی تقدیر کی طرح۔ بجلیاں چمک اور گرجدار آواز کے ساتھ وقفے وقفے سے جیسے بادلوں کے نشیمن میں اپنی بے قراریوں کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ فاطمہ کے دل کی کسک بھی عود ثریا کو چھونے لگی۔ بچے موسم کے قہر سے بری طرح سہمے ہوئے دبکے بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے ہمت کرتے ہوئے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا اور ہاتھ بڑھا کر ایمرجنسی لائٹ آن کی۔ موبائل پر علی کی کال تھی۔ 13 سالہ فریحہ نے لپک کر موبائل اٹھا لیا اور بے اختیار رونے لگی۔ ابو یہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے، ایسی بارشیں جو ہم نے وہاں سعودی عرب میں کبھی نہیں دیکھی، بہت ڈر لگ رہا ہے ابو، آپ جلدی آ جائیں۔ فاطمہ نے فون دینے کا اشارہ کیا، لیکن ریحان نے اپنی ویل چیئر کو بہن کے قریب کیا اور اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا۔ پھر اس نے شکایت کا دفتر کھول دیا۔
ابو यहाँ गर्मी और मच्छरों ने बुरा हाल किया है, रात सुकून से नींद भी नहीं आती, यहाँ तो एसी भी नहीं है अबू, तफरीह के लिए जिद्दा जैसा माहौल भी नहीं, हमें ये कहाँ लाकर छोड़ गए अबू, हमें सऊदी अरब वापस बुला लें प्लीज़, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। सिर्फ शिकायतें ही करोगे या कुछ और भी बात करोगे? अली की झल्लाहट में डूबी आवाज़ उभरी। अबू अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे वॉशरूम जाने में भी बहुत तकलीफ़ पेश आ रही है, अम्मी मुझे उठा नहीं पाती। ये सुनकर फातिमा की आंखें भीगने लगी। इसने बेटे के हाथ से फ़ोन लिया और निहायत कर्बनाक लहजे में गोया हुई, अली ज़िंदगी की शाहराह और इसके नशेब व फराज बहुत कठिन हैं, आपसे दूर हूँ तो इस बात का एहसास भी शदीद हो रहा है। आप कहते हैं ना कि सब्र व इस्तिक़ामत औरत का गहना है, किसी पल मैं इसे खोना नहीं चाहती अली, मैं ये साबित कर दिखाऊंगी कि वाक़ई सब्र व इस्तिक़ामत औरत का गहना है। रब ने जब आजमाइश दी है तो इंशाअल्लाह वही नजात भी देंगे, क्योंकि रब ही है जो बंदों को अपनी दी गई आजमाइश से रिहाई की कुदरत रखते हैं। वहाँ से फ़ोन कट चुका था, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने बदगुमानी को करीब भी भटकने नहीं दिया। पता नहीं क्यों फ़ोन कट गया, वरना अली कभी फ़ोन नहीं काटते। आंसुओं की बूंदें रुखसार पर फैल गईं। बिजली भी किसी बेवफा की तरह रूठ चुकी थी। इसने बच्चों को सोने की हिदायत दी और ख़ुद भी बिस्तर पर लेट गई। रात की सिहाई भी इसकी तकदीर की तरह सियाह चादर ओढ़ रखी थी। यादें इस तारीख शब का सीना चाक करती हुई जहन के पर्दे पर औद आईं और चश्म गज़ाल आंसुओं की नमी से पुर अंधेरे में झिलमिलाने लगी। फातिमा, कफ़ील का ड्राइवर हादसे में फौत हुआ है। इस शख्स की बेवा बेचारी काफ़ी परेशानियों में घिरी है। कफ़ील कह रहा था कि बेवा खातून का कोई इंतज़ाम किया जाए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस मुसीबत की मारी बेचारी का हाथ थामना चाहता हूँ। कई पल खामोशी के नज़र हुए, फिर फातिमा की खामोशी टूटी। इसने निहायत सर्द लहजे में कहा, इस शहर में और भी मर्द हैं जो बिना शादी सहरा की खाक छानने पर मजबूर हैं, इन्हें खिदमत का मौका दे। आप क्यों परेशान हैं अली, जबकि आपकी एक मुकम्मल फैमिली मौजूद है। फातिमा, तुम्हें इत्तला देना मकसूद था, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी। लहजे की तलक़ीब बता रही थी कि वो अपने फ़ैसले पर अटल है। मर्द को इख्तियारात हासिल हैं, यहाँ औरत का इनकार कोई मायने नहीं रखता। फातिमा का लहजा कर्ब में डूबा हुआ था। यार, किसी बेसहारा को सहारा देना अच्छी बात है ना, और फिर इस्लाम भी इस बात की इजाज़त दे रहा है। जवाब में फातिमा खामोश निगाहों से शोहर को देखने लगी। वही हुआ जो अली का दिल चाहता था। जीनत अली की मनकोहा बीवी बनकर घर आ गई और बहुत ही कम अरसे में घर की सल्तनत पर यूं कब्जा जमाया कि फातिमा और बच्चे तिनकों की मानिंद बिखरने पर मजबूर हो गए। जीनत सिक्के का वो रुख साबित हुई जिससे दुनिया शर्मसार थी। फातिमा के लबों से तकलीफ दा आह निकली। आंसुओं के सैलाब में बहते हुए इसने करवट बदली। आँखों में नासूर की तरह चुपता हुआ वो दिन यादों के दरीचों से झांकने लगा। अबू, दस्तरखान लग चुका है, अम्मी आपको बुला रही हैं। फरीहा ने धीरे से अबू की उंगली थामी और इन्हें दस्तरखान की जानिब खींचा। दस्तरखान पर बड़े खरीने से खाना चुना गया था। तुम्हारी अम्मी बहुत सलीक़ाशार खातून है। बच्चों की तरबियत, शोहर की खिदमत
पड़ोसियों का ख्याल, समाज की परवाह हर रिश्ते को बखूबी अंजाम देती हैं। फातिमा रेहान की व्हीलचेयर दस्तरखान के करीब लाती हुई मुस्कुराकर बोली, क्या बात है अली, आज बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। अरे यार, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अम्मी ने आज अपोलो फिश बनाया है अबू। फरीहा ने बहुत प्यार से अबू के मुंह में लुक़मा रखा। मरियम, तुम भी करीब आ जाओ। मरियम दौड़कर अली के गोद में बैठ गई। फातिमा रेहान को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अली की ये औलाद पैदाइशी अपाहिज थी, जिसकी खिदमत से फातिमा बहुत थक जाया करती थी। अली जब घर पे होता तो रेहान की जिम्मेदारी उठा लेता, जिसके सबब फातिमा को कुछ राहत नसीब होती। खाने से फारिग होकर अली ने जैसे एक धमाका किया, फातिमा, इंडिया चलने की तैयारी करो। बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, हमें खरूज पर इंडिया जाना होगा। फातिमा का चेहरा जर्द पड़ गया। वो किसी रेत के घरौंदे की तरह ढह गई। बच्चे भी सहम कर अबू की तरफ देखने लगे। बच्चों की पैदाइश इसी मुल्क में हुई थी, जिसके सबब इन्हें इस मुल्क के अलावा कहीं जाना गवारा नहीं था। यहाँ तक कि इन्हें छुट्टियों में इंडिया जाना भी बहुत दुश्वार महसूस होता था, क्योंकि वहाँ का माहौल इनके लिए बिल्कुल अजनबी था। सिर्फ 1 माह का अरसा भी निहायत आजमाइश तलब होता। अम्मी, हम इंडिया नहीं जाएंगे। रेहान ने मुंह बनाया। हाँ, हम इंडिया नहीं जाएंगे। फरीहा ने भी शक्ल बनाई। फातिमा के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। 17 सालों से इस मुल्क में मुकीम फातिमा के लिए इस तरह अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर वतन वापस लौटना एक मुश्किल तरीन मरहला था। यहाँ तो दोस्त अहबाब का एक जहां बसा हुआ था। क्या जीनत भी हमारे साथ चलेगी? इसने आहिस्तगी से पूछा। जीनत की फिक्र क्यों कर रही हो? लहजा काफी तल्ख था। फातिमा ने रोते हुए रख्त सफर बांधा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही फातिमा बेख्तियार रो पड़ी। बच्चे भी बहुत उदास थे। इंडिया में ज़ाती मकान भी नहीं था, क्योंकि सारा पैसा अली ने अपने बिजनेस में लगा रखा था। फातिमा ने किराए का मकान हासिल किया। गृहस्थी को दोबारा जोड़ा गया। 1 महीने की भाग दौड़ के बाद एक दिन अचानक अली ने अपनी वापसी का इंकशाफ किया तो मानो फातिमा पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। बिजनेस नुकसान की वजह से ख़त्म हो चुका अली, फिर ये वापसी कैसी? इसका मतलब आपने अपना खरूज नहीं लगवाया था, धोखे से हमें एग्जिट लगवा कर इंडिया ले आए। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? शिद्दत कर्ब से फातिमा की जैसी आंखें फट पड़ने को थी। अली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें चुराता रहा। कश्ती को कश्ती के मुहाफिज ही ने तूफान के हवाले कर दिया था। फिर वो परदेस लौट गया। दिलों और रिश्तों की तफरीक जिससे गैर शौरी तौर से मसावात हो जाती हैं, ये कारनामा तभी अंजाम पाता है जब दिल किसी एक जानिब झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। मर्द घर के हाकिम होते हैं। इसने अगर ख़ानदान में मसावात नहीं रखे तो क़यामत के दिन पूछ होगी। रवैये तल्ख, लहजे सख्त और राब्ते सर्द मोहरी के नज़र हो गए। गिला मौत से नहीं है, मुझे ज़िंदगी ने मारा। फातिमा करवट बदल कर बड़बड़ाई। बाहर की तरह इसके वजूद के अंदर भी रात भर बारिशों का शोर बरपा रहा। अज़ां की आवाज़ पर इसने आँखों को खुश्क किया और बिस्तर से उठ गई।